It is May 1962. An experiment is being conducted in the Elegant Interaction Laboratory at Yale University. अब आइए दो स्टडीज को ऐसे जानते हैं जो वाकई में अनएथिकल थी। साइकोलॉजी में और अदर साइंस फैक्टर्स में हम देखें तो ये साइंस के खिलाफ तो बिल्कुल थी, पर एक्सपेरिमेंट के नाम पे यहाँ कुछ और ही चल रहा था। इस स्टडी का नाम है मिलग्राम ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट। स्टैनली मिलग्राम ने याल यूनिवर्सिटी में 1961 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो आज भी साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड और होलोकॉस्ट के बाद ये सवाल उठाया, क्या आम लोग सिर्फ ऑर्डर्स के चलते क्रूअल बन सकते हैं, यानी कि निर्दयी बन सकते हैं? एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को बताया गया कि वो एक मेमोरी टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। एक वॉलंटियर टीचर बनता था और दूसरे वॉलंटियर को लर्नर, लेकिन लर्नर्स असल में एक्टर होता है जो वाकई में एक्टिंग करता है। असल में टीचर को कहा गया कि अगर लर्नर से गलती हो तो उसे शॉक देना है और हर गलती के साथ शॉक का वोल्टेज बढ़ाते जाना है। रियलिटी में ये थी कि लर्नर सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन टीचर को लगता था कि वो असली शॉक दे रहा है। एक्टर चिल्लाता, दर्द में चीखता और एक स्टेज पर पूरी तरह साइलेंट हो जाता। 165 volt. Time. That guy's hollering in there. Continue, please. Go on. Sharp. Axe, needle, stick, blade. Answer, please. Wrong. I'm up to 180 volts. Please continue, teacher. Needle, you're gonna get a shock. 180 volts. I can't stand the pain. Let me out of You here. can't stand it now. I'm not gonna kill that man, there. You hear him hollering? He's As I said dying. before, the shocks may be painful, but Yeah, they're not but he's in there dangerous. hollering. He can't stand it. What if something happens to him? The experiment requires that you continue, teacher. Yeah, but I'm not gonna get that man sick in there. I mean, he's hollering in there. You know what I mean? Whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the word I pairs. refuse to take the responsibility of getting hurt in there. I mean, he's in there hollering. It's absolutely essential that you continue, teacher. There's too many left here, and I mean, geez, he gets wrong here. There's too many of them left. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. You're going to keep giving him, what, 450 volts every shot now? That's correct. Continue. The next word is white. White, 450 volts. Next one is short. Sentence, movie, spurt, time. All right, excuse me, teacher. We'll have to discontinue the experiment. I'd like to ask you a few questions, if I may. How do you feel about it? I feel all right, but I don't like what's happened to that fellow in there. He's been howling, and we had to keep giving him shocks. I didn't like that one bit. I mean, he wanted to get out, and he just kept going, kept throwing 450 volts. I didn't like that. He wouldn't even look at him, that gentleman. Well, who was actually pushing the switch? I was. But he kept insisting. I told him no, but he said he got to keep going. I told him it's time we stopped when we got up to 195, 210 volts. कि उनको लगता कि अब तो भाई हद ही हो गई। इसके बावजूद 65% पार्टिसिपेंट्स एक्सपेरिमेंट की अथॉरिटी मानते हुए 450 वोल्ट तक शॉक देते गए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कहा गया था। यह एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि कैसे आम लोग अथॉरिटी के दबाव में खुद की एथिकल सेंस को खो सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स गिल्ट, एंजाइटी और इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हुए। इस कारण मिलग्राम को भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनकी थ्योरीज को क्रिटिसाइज भी किया गया। उनकी केस स्टडीज को, उनके एक्सपेरिमेंट को APA ने, यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एथिकल इश्यूज पे कंसर्न उठाने की बात भी की गई कि ऐसी स्टडीज इन द फ्यूचर्स कभी नहीं की जाए। ऐसी स्टडीज करने से पहले पार्टिसिपेंट्स को कंसर्न तो दिया जाए कि आखिरकार उसको क्या होने वाला है। मैं समझ सकता हूँ पूरी बात नहीं बताई जा सकती है, पर उसके बारे में डीब्रीफिंग बताया कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्या एक्सपेरिमेंट है। टेस्ट कुछ और करते कुछ और है। पर हालांकि ऐसा आज के टाइम पे ये होता नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं और ऐसा अनएथिकल स्टडीज आज तक मैंने कभी देखी नहीं है। अगर होती भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके बारे में जरूर रिसर्च करूंगा और आपके लिए एक न्यू डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आऊंगा। चलिए फिर एक और स्टडीज के बारे में हम जानते हैं। इस स्टडी का नाम है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। 1971 में फिलिप जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट को एक नकली जेल में तब्दील किया, यानी कि उसको चेंजेस किया। 24 कॉलेज स्टूडेंट्स को रैंडमली 2 रोल्स में बांटा गया, गार्ड और प्रिजनर। एक्सपेरिमेंट का मकसद था कि ये समझा जाए कि प्रिजन एनवायरनमेंट में रोल प्ले कैसे इंसानी व्यवहार को बदल देता है। शुरुआत में सब नॉर्मल था, बट कुछ ही दिनों में चीजें बेकाबू हो गई।
गार्ड्स एब्यूजिव बन गए। उन्होंने प्रिजनर्स को इमोशनली टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उन्हें नींद नहीं लेने देते थे, उन्हें साइकोलॉजिकल ह्यूमिलिएशन देते थे। प्रिजनर्स इमोशनली टूटने लगे। कुछ पार्टिसिपेंट ने नर्वस ब्रेकडाउन का सामना किया। एक्सपेरिमेंट को 2 हफ्ते तक चलाना था, लेकिन सिर्फ 6 दिन में ही उसे बंद करना पड़ा। जिम्बार्डो खुद प्रिजनर वार्डन का रोल प्ले कर रहे थे और इस वजह से एथिकल बाउंड्री पूरी तरह खो गई थी। ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में पावर ऑफ रोल्स और सिचुएशनल इन्फ्लुएंस का सबसे गहरा उदाहरण तो देता ही है, लेकिन इसकी मेथोडोलॉजी और एथिक्स आज भी हेटेड डिबेट का विषय है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया कि कैसे आप नोबल पर्सन को एक ह्यूमिलेट कर सकते हो। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि इसके बाद उनके साथ क्या क्या हो सकता है। वो सभी के सभी पार्टिसिपेंट गिल्ट, स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार भी हुए और कुछ तो भाई सुसाइड भी अटेम्प्ट करने लगे थे कि भाई अभी हमें नहीं जीना है, पर उनको रोका गया। उनका इलाज भी हुआ, उनका ट्रीटमेंट भी हुआ, पर आज के टाइम पे वो अभी भी वो पर्सन ठीक भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो आज की साइकोलॉजी रिसर्च में हाई रिस्क स्टडीज को कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और पार्टिसिपेटिंग की सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानी जाती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई आपको इन दोनों स्टडीज में आपको कौन सी स्टडीज अच्छी लगी, कौन सी ज्यादा स्टडीज कंट्रोवर्शियल थी और कौन सी स्टडीज को करने से क्यों उसके ऊपर कंसर्न उठे। और मुझे और डिटेल्स में जरूर बताना कि आपको और कौन सी अनएथिकल स्टडीज जानना चाहते हो। और हाँ, मैं साइकोलॉजी के कुछ ऐसे यूनिक फैक्टर, यूनिक टॉपिक्स लेके जरूर आऊंगा। हालांकि मैं एक न्यू सीरीज शुरुआत करने वाला हूं जिसमें मैं एक नए टॉपिक्स जरूर छेड़ूंगा, और साथ में वो उसके गैप बाय गैप, यानी कि एक पॉलिटिशियन, एक साइकोलॉजिकल, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जरूर लेके आऊंगा, जिसके बारे में आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्ते दोस्तों।